Welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. In this video, we'll be continuing with my previous video topic only, which is theory of demand. In this video, we'll be studying about the law of demand and related things to it. Okay, now let's first understand what is law of demand. जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड किया था तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड मैप क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड डिमांड कर्व क्या होता है. Okay, after understanding all of this, if you guys are not able to relate what I am going to teach in this video, I would request first go and watch my previous video so that you have a clear idea what we are doing here. Okay, now moving ahead to the law of demand. It says other things remaining constant, there is an inverse relationship between the quantity demanded and the price of the commodity. ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड कि एक इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर मेरा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज होगी तो मेरी जो क्वांटिटी है, जो इतनी मैं पहले खरीद रही थी, वो कम हो जाएगी. ओके, देयरफॉर इट शोज भाई एक अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी. ओके, एंड वाइस वर्सा. So relationship between quantity and price is inverse. It means if the quantity increases, price decreases, and if the quantity decreases, price will increase. Both the things will go in opposite direction to each other. Okay, so this is my price of the good and this is the quantity demanded. जैसे जैसे price is reducing, price was 10, then it came to 9, then 8. Price is decreasing. So you can see the quantity demanded will increase 10, 15, 20. So we'll plot it on the graphical representation. When we give the graphical representation of the demand schedule, what we get? We get the demand curve. Similarly, हम इसको तब यहाँ ग्राफ में प्लॉट करेंगे. Y एक्सिस पे हमारा प्राइस, X एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी. When we plotted it, we got a demand curve DD. DD is our demand curve. Now let's get on to the assumption of the theory of the law of demand. Okay, assumptions क्या होते हैं? कुछ चीज हम assume करते हैं so that it is easy for us to prove the theory and understand the theory. Okay, so in the definition when I use this word other things constant, it means जो बाकी फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है उनको हम कांस्टेंट समझेंगे और वी विल टेक ओनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू कंसिडरेशन. Like in my previous video, I have given you the different factors on which the demand depends. Okay, तो उन सारे factors को will assume constant कि उसका कोई असर नहीं है in law of demand and will take only the price of the commodity into the consideration. Now let's move on to assumption number 1. It says taste and preference of the consumer is constant. Next is there is no change in the income of the buyer. Price of the related goods do not change. When I say related goods, मतलब अगर मैं टी और कॉफी का एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था what are related goods. If you are able to relate, very good. If you are not, please go and watch my video. I'll be linking the link of my previous video by the end of this video. Okay. Now next is consumer does not expect anything to change in future. उसकी expectations भी हमारी constant है. Okay. So I think you have understood why we have used the other thing constant कि दूसरे factors हमारे change नहीं होंगे, only will take the price into consideration. Now coming on to the very important question, why the consumer purchase goods or why the demand curve slopes downward. Okay, दोनों का factors और जो हमारे reasons है same रहेंगे. Number 1 is law of diminishing marginal utility or DMU. It means हमने किया था ना यूटिलिटी चैप्टर में, the more of the commodity is consumed, the utility comes down. Okay, diminishing marginal utility है, जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ही एक टाइम के बाद एक कंज्यूमर will be willing very less to spend on that commodity. Okay, therefore number 1 is diminishing marginal utility. Second is income effect. Income effect के अंदर we take real income. Real income मतलब अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 10 रुपए में
एक पेन खरीदती थी, ओके, अब पेन के प्राइस कम हो गए, अब मैं 10 रुपए में 2 पेन खरीदती हूँ। इट मीन्स मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। उस मेरी पर्टिकुलर इनकम में ड्यू टू द प्राइस हैज चेंज्ड, तो उससे मैं क्वांटिटी अब ज्यादा परचेज कर पा रही हूँ, ओके। तो इनकम इफेक्ट की वजह से भी, इनकम इफेक्ट में हम रियल इनकम को कंसिडर करते हैं, एंड दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ओके। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल टी और कॉफी है, ओके। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं टी कंज्यूम करती हूँ और मैंने देखा कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो अब मैं ज्यादा टी को कंज्यूम करूंगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब रिलेटेड गुड के जो प्राइस अगर चेंज हो गए तो मेरी कमोडिटी पे मेरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर मींस जितने ज्यादा लोग उस चीज की मांग रखेंगे, ठीक है ना, तो डिमांड उतनी ज्यादा होगी। Therefore, more of the consumer demanding the good will lead to increase in demand, and opposite to it, less of consumer होंगे तो less of demand होगी, okay. Moving to the next thing is different uses of one commodity. Different uses मतलब जैसे मिल्क है, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वी कैन यूज इनटू डिफरेंट वेज। कुछ लोग पीने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम बनाने के लिए। सो दिस प्रोडक्ट हैज डिफरेंट यूज, देयरफॉर these are the reasons why our demand curve slopes downward or why the consumer purchase goods. So now I think मुझे लास्ट वाला पॉइंट फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंट यूज में, so that you guys don't get confused. डिफरेंट यूज मतलब अगर जैसे मैं आज मिल्क में बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में मिल्क के मैं डिफरेंट यूजेस करती हूँ, मुझे दही भी बनानी है, मुझे कंज्यूम भी करना है, मुझे चाय भी बनानी है, डिफरेंट चीजें हैं मेरी मिल्क में, देयरफॉर मैं मिल्क ज्यादा डिमांड कर रही हूँ, ओके। अगर मिल्क का प्राइस मेरा इंक्रीज होगा, ओके, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम। उसकी वजह से जो डिफरेंट यूजेस थे वो भी मेरे कम हो जाएंगे। Therefore, different uses also play a very important role in why consumer purchase good or why the demand curve slopes downward. Understanding the law of demand, now let's understand the exception of law of demand. Guys, do not confuse the assumption and exception of the law of demand. Assumption मतलब जो हम assume करते हैं theory को prove करने के लिए, exception is the situation when this law of demand will फेल। तब मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सिचुएशन कब फेल हो जाएगी, ओके। देयरफॉर नेवर एवर मेक द एक्सेप्शन द assumption or assumptions the exception, okay. Now so coming to the exception of law of demand, it refers to the situation when law of demand failed, and now let's see different situations when it fails. Number 1 is articles of distinction. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब वो ऐसी कमोडिटी जो तुम्हारी रेपुटेशन के हिसाब से है, जो तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगी, डिस्टिंक्ट करेगी, तुम्हें बाकियों से अलग करेगी, ओके। सो हियर प्रोफेसर वेबलन, दिस इज an important name, you guys should mention if you are mentioning the articles of distinction or in the exception of law of demand, okay. So this Professor Veblen said that there are some goods which are called article of distinction, मतलब लोग उसको ज्यादा डिमांड करते हैं तब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बहुत अमीर है, जैसे मैं हूं, मैं बहुत कल को अमीर हो जाती हूँ, विल आई गो फॉर द नॉर्मल गुड्स? नो, जो लोग खरीद रहे हैं मैं वो खरीदूंगी नहीं। आई गो एंड बाय अलग से कोई विंटेज कार या अलग से कोई ऐसी हाई रेटेड ऐसी पेंटिंग जो कोई और ना खरीद पाए, जिससे मेरे घर में कोई आए तो सब देख के बोले कि वाह क्या चीज है, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखी है ना। Therefore, people demand these commodities when the price is high, okay. Example डायमंड, डायमंड कौन खरीदता है? नॉर्मल लोग खरीदेंगे नहीं, ओनली जो रिच होते हैं वही करते हैं, क्योंकि इट इज द स्टेटस सिंबल, भाई डायमंड पहनना है। नेक्स्ट विंटेज कार हो गई, जो किसी के पास नहीं वैसे वाला मॉडल तुमने खरीदा है। सेकेंड केस हियर इज द केस ऑफ गिफन गुड्स, तब मैं बोलती हूँ वेबलन गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इट मीन्स बहुत ही हाई प्राइस वाले गुड्स जो अलग होंगे। जब मैं बोलूँ गिफन गुड्स मतलब जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा
हाईली इंफीरियर होगी। ओके, यहाँ हमारा इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा, मतलब चाहे मेरी इनकम कुछ भी हो मैं तब भी इन गुड्स को नहीं खरीदूंगी। ओके, तो प्राइस ऑफ द, इफ द प्राइस इज ऑल्सो लेस, डिमांड इज स्टिल द लेस। अगर प्राइस चाहे कितना ही कम हो जाए मैं फिर भी नहीं खरीदूंगी ये गुड्स। ओके, डिमांड तब भी लेस रहेगी। Therefore, this is also called as Giffen paradox. Giffen paradox मतलब the goods whose demand is low when their price is low. Okay, इसको हम बोलते हैं highly inferior goods, बिल्कुल ही लो क्वालिटी गुड्स जो कोई खरीदना नहीं पसंद करता। ओके, एग्जाम्पल बाजरा, एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। ओके, ये सब कोई नहीं खरीदता है। These are the example of Giffen goods which are highly inferior goods. जब मैं highly inferior good बोलती हूँ, अगर मैंने यहाँ यूज किया था इनकम इफेक्ट, हाई इनकम इफेक्ट, मतलब अगर मेरी इनकम एक बार को कम भी हो जाएगी तब भी मैं लगा लो मैं रिच हूँ, मेरी इनकम थोड़ी कम हुई तो आई विल स्विच टू नॉर्मल गुड्स। ओके, लेकिन इंफीरियर गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स के लिए कौन जाता है? वेरी पुअर पीपल, जिनकी इनकम ही नहीं, जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पुअर पीपल गोज फॉर हाईली इंफीरियर गुड्स, जिनको काम चलाना है अपना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इट इज इरैशनल जजमेंट। इरैशनल जजमेंट मतलब बिना सोचे समझे अगर मैं सिर्फ कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ उसके प्राइस को देख के उसकी क्वालिटी जज कर देती हूँ, दैट विल बी माय इरैशनल जजमेंट। ओके, अब एक बात करेंगे हम, जैसे एग्जांपल लेते हैं आईफोन का। ओके, सबको पता है आईफोन भाई बहुत महंगा आता है तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, जबकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें एंड्रॉइड फोन जो है हमारे वो भी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंज्यूमर लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन ही खरीदना है नो मैटर व्हाट ऑल द फीचर्स द एंड्रॉइड फोन इज ऑफरिंग मी। ओके, सो हियर आई एम डूइंग द इरैशनल जजमेंट। ओके, तो इन इरैशनल जजमेंट की वजह से क्या है, अगर हमारे द प्राइस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन हो जाता है 2 लाख रुपए का, तो मेरे पॉकेट के हिसाब से मैं नहीं खरीद सकती हूँ उसको। Therefore, I'll think of going and buying an Android phone. तो इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, therefore irrational जजमेंट क्या है, जब हम किसी भी कमोडिटी की या प्रोडक्ट की हम क्वालिटी जज कर देते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट देयर प्राइस। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हमारा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके, अब ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, देयरफॉर डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड। ओके, अब डिमांड कर्व हमारा ऊपर की साइड जा रहा है। एज यूजुअल ऑन माय y axis I have price and on my x axis I have the quantity. Okay, here their relation between the quantity demanded and the price of the commodity is positive. दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, therefore the curve is moving upward. So here you can see, पहले मेरा P1 था तो मैं क्वांटिटी Q1 कर रही थी, लेकिन क्योंकि जैसे अमीर लोग हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन खरीदते हैं, ये सब चीजें हमने अभी जो बात की है या इरैशनल जजमेंट में की थी, जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर क्या क्वालिटी जज कर लेता है या सोचता है कि दिस इज द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, देयरफॉर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर शोइंग द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द बोथ। So positive relation means both are moving in the same direction. Quantity increase means price increase, quantity decrease means price decrease. So now let's understand very important topic about movement and the shift in the demand curve. Okay, so first we'll talk about the movement along the demand curve. Along मतलब demand along है, मतलब demand curve same रहेगा लेकिन ऊपर नीचे हम move करेंगे onto different points. Okay, along का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. Now this movement along the demand curve क्यों होती है? Because there is the change in the quantity demanded. Quantity change होने की वजह से we keep moving on the same demand curve, sometimes upward and sometimes downwards. Okay, when I say change in quantity demanded, it means either the extension of demand will happen or the contraction of demand will happen. Extension मतलब जब मेरी खुद की commodity का प्राइस गिर जाएगा तो उसकी मेरी quantity demanded will increase. Okay,
तो प्राइस डिक्रीज होने से अगर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, इट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका उल्टा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक हो जाएगा। नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब अगर मेरी जो कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रही थी उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। ओके, नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सो दैट द आइडिया ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज क्लियर टू यू ऑल। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब जब मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी गिरेगा तो मेरी क्वांटिटी जो है दैट विल इंक्रीज। ओके, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इन दिस फिगर। फर्स्ट विल टेक द टेबल। हियर आई हैव द प्राइस ऑफ माय कमोडिटी एंड हियर इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। अगर मैं बोलती हूँ पहले प्राइस 5 रुपए था तो मैं 1 यूनिट कंज्यूम करती थी, बट अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया था, जब मैं पहले मेरा प्राइस डिक्रीज हुआ मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो एक्सटेंशन के अंदर हम यही देखेंगे, इफ देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। नाउ आई विल टेल यू व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। जब मेरा प्राइस 5 रुपीज था, आई वॉज कंज्यूमिंग 1 यूनिट, अब प्राइस गिर के 1 रुपीज हो गया है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट 5 यूनिट हो गई है। देयरफॉर ये मेरा डिमांड कर्व था, मैं पहले पॉइंट ए पे थी, अब मैं पॉइंट बी पे आ गई क्योंकि मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। ओके, आप देख सकते हो कि देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ए से मैं बी पे आई हूं तो नीचे की साइड आई हूं ना। क्यों आई हूं? क्योंकि मेरी जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है। दैट इज व्हाई एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज आल्सो नोन एज द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व or also as the expansion of demand curve. Okay, now talking about the contraction of demand curve, it is totally the opposite. Now we'll move towards the upward direction along the demand curve. Okay, पहले मेरा प्राइस 1 रुपीज में मैं 5 यूनिट करती थी, अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। 5 रुपए हुआ तो मेरी 1 यूनिट हो गई। तो सेम सिमिलरली हम इसको प्लॉट करेंगे। तो मैं पहले इस पॉइंट पे थी, मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तो मैं इस पॉइंट पे आ गई। देयरफॉर इट शोज द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व एक ही है लेकिन मैं मूव कर रही हूँ कभी अपवर्ड साइड जब मेरी प्राइस इंक्रीज हो जाता है और टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड तब मेरा प्राइस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड मेरी इंक्रीज होगी, आई विल मूव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, and if my quantity demanded will decrease, I move towards the upward side. Now guys, let's see why the shift happen in demand curve. पहले हमने movement पढ़ा था। movement मतलब same demand curve है, point change हो जाएंगे। shift के अंदर now this demand curve will shift forward or backward. Okay, demand curve कब shift होगा? When the change in demand will happen. Okay, चेंज इन डिमांड के अंदर भी हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, एज इंक्रीज इन डिमांड एंड एज डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अगर मेरा डिक्रीज इन डिमांड होगा, मेरी डिमांड कम होगी तो मेरा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर मेरे इंक्रीज इन डिमांड होगी मतलब मैं ज्यादा डिमांड करूंगी तो मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, बैकवर्ड शिफ्ट मतलब मैं टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करूंगी, राइट फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब आई विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ओके, सो ये शिफ्ट क्यों आता है? बिकॉज द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर नाउ चेंजिंग। अब जो फैक्टर्स हमने पहले कांस्टेंट जो हम एज्यूम करते थे, अगर वो फैक्टर्स में चेंज आएगा अपार्ट फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, अब प्राइस नहीं चेंज होगा कमोडिटी का, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं वो चेंज होंगे। तो अगर उन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे शिफ्ट इन डिमांड कब आएगा? सो व्हेन आई से अदर फैक्टर्स क्या होगी? जैसे इनकम, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर में, क्या मुझे वो गुड्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। सो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स अगर हमारे चेंज होंगे तो हमारे इस चेंज की वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व आएगा। ओके, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में हम प्राइस की बात करेंगे। ओके,
Now first we'll see forward shift in demand curve, or it is also known as increase in demand. Okay, तो हमने देखा कि हमने क्या assume किया, price will not change but our other things will change. Okay, so price will remain same 10 और क्वांटिटी पहले मेरी 20 थी, अब 30 होगी. ओके, सो अर्लियर आई वाज ऑन डिमांड कर्व DD. ओके, आई वाज डिमांडिंग 20 यूनिट एट प्राइस 10, लेकिन अब आई हैव माय डिमांड हैज इंक्रीज. अब मैं नेक्स्ट डिमांड कर्व पे आ गई. आई हैव मूव टुवर्ड्स द राइट, मतलब मैं फॉरवर्ड शिफ्ट किया है मैंने और मैं पॉइंट P पे आ गई हूँ. प्राइस सेम है लेकिन मैं क्वांटिटी जो हूँ 30 यूनिट्स कंज्यूम करने लगी हूँ. Now let's see what causes the forward shift in the demand. As I told you, other factors like जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो मैं आगे वाली डिमांड पे या फॉरवर्ड डिमांड पे शिफ्ट करूंगी. ठीक है, या मेरे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मेरी प्रीवियस वीडियो में. अगर आपको नहीं याद है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. ओके, सेकेंड चेंज कब होगा, जब मेरे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज होंगे. ओके, या मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी और मुझे वो कमोडिटी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इन फेवर में चेंज आएगा तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी. या मुझे पता है फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं होगी तो मैं सोचूंगी मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ अपने पास. ओके, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन टू डिक्रीज इन फ्यूचर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम होंगे मुझे पता है. So these are the reason which cause the forward shift or the rightward shift or the increase in demand curve. Now coming to the backward shift in demand curve or decrease. What causes the backward shift in demand curve? Okay, so here we'll see price तो same रहेगा लेकिन quantity will decrease. Okay, first we'll see the graphical representation. Price same ही है मेरा. Okay, पहले I was on DD demand curve when I was demanding 30 unit of the commodity, but due to the change in my various other factors I have shifted to point B on a new demand curve called D1 and here I demand 20 units of the good. Okay, now let's see what are the various factors that lead to the leftward shift or the backward shift or the decreasing demand. Okay, number one is when the income of the consumer decreases or the price of the substitute decrease. Third is the price of the complementary goods increase or the taste and preference shift against the commodity. Okay, मुझे अब वो commodity इतनी खास पसंद नहीं है, I switch to other commodity. Or the expectation to rise in the good in future. I know the goods will be available in future also, so why I need to increase my demand? Okay, so these are the factors which will lead to the backward shift or the decrease in demand or to the leftward shift in the demand curve. तो शिफ्ट में आपने देखा डिमांड कर्व दूसरा बनता है लेकिन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व सेम रहता है लेकिन पॉइंट चेंज हो जाते हैं. So guys, it's time for Tone Your Brain. Here are the 3 questions you need to answer in the comment section. Number 1 is define law of demand. Second is write the difference between assumption and exception. आप क्या समझते हो assumption से और exception से, and what are the conditions, like what are the assumption of law of demand or the exception of law of demand. You need to give me the factors. Okay, now third is what caused shift in demand curve and what caused movement along the demand curve. This third question is one word question. You need to just give me the factor which cause shift and which cause movement along the demand curve. That's it for today's video guys. Do not forget to like, share and subscribe. And most importantly guys, comment down all your answers in the comment section. Also do not forget to press in the thumbs up icon under my video. Now I'm signing off from this video. See you guys very soon.